हमारा चैंपियन कंपनी का ब्राउन प्लाटन का प्लाटन हवलदार 1331 320 63 प्लाटन का हवलदार तंगन साहब, वो साहब को ऑनर करने के लिए कर्नल प्रेम कुमार साहब को प्लीज। ये तीनों 62 का एनरोलमेंट था, 1962 का एनरोलमेंट था। सर प्लीज। இங்க எல்லா பேருமே மற்ற லாங்குவேஜ்ல பேசியிருக்கலாம். இருந்த போதிலும் எம்ஏ மெட்ராஸ் இன்ஜினியரிங் குரூப்பில் வேலை பார்த்த எல்லாத்துக்குமே 5% இருந்து 50% வரை இந்திக்காரங்களாக இருந்தாலும் தமிழ் கற்றக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அவங்க எல்லாத்துக்குமே ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்குறோம். ஆர்வ மூலியமா கொடுத்தோம். मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप का नाम बोलते हुए तभी हम लोग हिंदी में बात करना शुरू, तमिल में कैसे बात करना है उसका बारे में भी उन लोग जानता है। वैसे मैंने 1967 में 14 इंजीनियरिंग रेजिमेंट में आया था, लेकिन 1988 तक 14 इंजीनियरिंग रेजिमेंट से रिटायर्ड गया है। இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன்னு சொன்னா, ஒரே ரெஜிமெண்ட்ல அவ்வளவு நாள்னு வாங்க. நான் இங்கே ஒரு ஷாப்பு கூட வேலை செய்தேன். ஆனால் அப்போ தான் என்னுடைய கண்டோக்கில் அவரே என்னை கூப்பிட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணி மறுநாள் காலையில் முதல் ஆளாக என்னை காப்பாற்றினார். சார் வெங்கட்ராமன் சார் என்னுடைய வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. ஏன்னு கேட்டால் 7 மைல்லேருந்து எல்லாத்தையும் கொண்டு என்னை கண்டோக்கில் அட்மிட் பண்ணாரு. மறுநாள் காலையில் ஆப்ரேஷனுக்கு முன்னாலே என்னை பார்த்துருக்காரு. இந்த மாதிரி ஒருத்தர் கிடைச்சதுக்கு அவருக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் 1967 ஹைதராபாத் போஸ்டிங் வந்தாச்சு. அங்கேருந்து லே போனோம் உடனே என்னுடைய முதல் ஆபரேட்டர் ரேடியோ ஆபரேட்டர் ட்ரேடு என்னுடைய முதல் வேலை 292 துர்பூக்கில் இருந்துச்சு. அப்போ அங்கே ஆபரேட்டர் காரணமாக நான் நீண்ட நாள் ஹெட் குவார்ட்டரில் தான் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆனால் என்னுடைய சர்வீஸு 292 ஆரம்பிச்சு என்னுடைய ரிட்டையர்டும் 292 முடிஞ்சு. அது எனக்கு கிடைச்ச ஒரு வாய்ப்பாக கிடைச்சு உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை கூறிக்கொண்டு இவ்வாய்ப்புக்கு நன்றி கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றியோடு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். थैंक यू। पहले एड्रेस करने के लिए कर्नल वेंकटरामन साहब प्लीज। इधर मुझे यहाँ आप सबको देख के बेहद खुशी हो रही है और खासकर मुझे अभी आई एम फीलिंग यंग अगेन, क्योंकि मेरा पहला पोस्टिंग 14 में 292 में ही था, हमेशा 292 में था। और मेरे साथ मनोहरन साहब थे और उनके साथ BN राव, ये सब हम लोग सिक्किम गए थे, वहाँ पे हमने बंकर बनाए थे और अभी वो धीरे धीरे याद आ रहा है। 14 इंजीनियर रेजिमेंट ने जितना मुझे प्यार दिया है और किसी ने नहीं दिया है, और मैं डेफिनेटली कोई भी आए मेरी मदद मांगे, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू ऑल। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जो संगठन है आप लोगों का, ये दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। पदिनाले 292 फील्ड कंपनी की थैंक यू। कर्नल गोपीनाथ साहब
ப்ளீஸ். 292 ஃபீல் கம்பெனி எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். என்ன நம்மளை இங்கே கூப்பிட்டதுக்கு. வெங்கட்ராமன் சாப் தமிழில் பேசியிருக்கணும், நான் அவர் ஹிந்தியில் பேசிட்டாரு. நான் தமிழில் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுறேன். நான் உங்களெல்லாம் லாஸ்ட் ஐ திங்க் 3-4 வருஷம் முன்னாடி தான் இங்கே வந்தாச்சு. 2-3 பாயிண்ட்டு ராவ் சாப் சொல்லியாச்சு என்னோடய மோட்டர் சைக்கிள் பற்றி. வெள்ளூர் பெங்களூர் கொஞ்சம் கூட பக்கத்தில் இருந்தால் நான் அந்த மோட்டர் சைக்கிளில் வந்திருப்பேன். ஏன்னா அது இப்போ எங்கிட்ட தான் இருக்குது. அவர் சொல்லியாச்சு 222 போய் பூரி சாப்பிட்டாச்சுன்னு. அது சரியா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனால் எனக்கு வெயிட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்தனால வீட்டில் சாப்பாடு கம்மி, அதனால அந்த லங்கரில் எப்போ டெய்லி போய் டேஸ்டிங் நான் போயிட்டு இருந்தேன். எல்லா லங்கருக்கும் போயிட்டுருக்கேன், 292 மட்டும் இல்லை. லாஸ்ட்லி உங்களுக்கு எல்லா நியூ இயர் விஷஸ் அண்ட் பொங்கல் அட்வான்ஸ் விஷஸ். தேங்க்யூ. சாப் தங்க சாப். நெக்ஸ்ட் கர்னல் பிரேம்குமார் சாப் ப்ளீஸ். என்ன ரொம்ப பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. ஏன்னா 1977 வந்தேன் நான் 292 கம்பெனிக்கு. இவரை தெரியும், அவரை தெரியும். லாஸ்ட் டைம் பெங்களூரில் இருக்கும்போது நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க 14 இன்ஜினியர் கெட் டுகெதருக்கு. இப்போ நான் பெங்களூரில் இருக்கிறேன். உங்களுக்கு என்னாவது தேவைப்படும் பெங்களூரில், என்னால் ஏதாவது வேலை உதவி செய்ய முடியும்னா டெஃபினெட்லி ஐ வில் பி கிளாட் டு டூ இட். உங்களை எல்லாம் பார்த்தது ரொம்ப பெரிய மகிழ்ச்சி. கடவுள் உங்களோட இருந்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. தேங்க்யூ. Thank you, Saab. Saab, next, Colonel Sridharan Saab, please. கமிஷன் ஆகி 14 தான் கமிஷன் ஆனேன். பட் இனிஷியல் 5 இயர்ஸ் நான் வந்து 411 போயிட்டேன். மனோகர் சாப் கார் சாப் ரைஸ் பண்ண 411 இண்டிபெண்டன்ட் ஃபீல்ட் கம்பெனி போயிட்டேன். அதுக்கப்புறம் 2000 ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ் எனக்கு கிடச்சிது ரெஜிமெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு குமன் சார் பீரியடில். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் டென்யூர் அஜய் ரெட்டி சார் பீரியடில் ஜோத்பூரில் பண்ணேன். 292 பண்ணுற கம்பெனியில் சர்வ் பண்ணுற சான்ஸ் எனக்கு கிடைக்கல. இட்ஸ் எ கிரேட் கம்பெனி. சொன்னாங்க சியாச்சின் கிளேசியர் போயிட்டு வந்த ஒரே கம்பெனின்னு. கிரேட் குட் இது இன்ட்ராக்ஷன் உங்கள் கூட இருக்குது. இது மாதிரி அடிக்கடி எவ்ரி இயர் பண்ணுங்கள். நான் வந்து சென்னையில் இருக்கேன், ஓல்டு ஏடபிள்யூஹெச்ஓ சாலிகிராமத்தில். ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் 2020 ரிட்டையர்ட். எனி ஹெல்ப் யாருக்காவது ஏதாவது தேவைப்பட்டால் ப்ளீஸ் கான்டாக்ட் மீ. Thank you very much. Thank you, Saab. Next, Colonel Ajay Reddy Saab. गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर सब लोग को. तो अभी वो बता रहे थे कि 1962 में वो भर्ती हुए थे, तो मैं 1989 में भर्ती हुआ था. तो एक बात मैं मनोरंजन साहब को बार बार बताता रहता हूँ. इधर जितना भी आदमी है वो मेरे से सब सीनियर है, सब मेरा गुरु है, सब मेरे को सिखाया है. मैं पुदू साहब से ज्वाइन हुआ था और उसके बाद में रेजिमेंट का सीओ बना हूँ. लेकिन हर एक स्टेप में यही लोग जो इधर पीछे बैठा है ये मेरे को सिखाया था, ये मेरा गुरु है. ये लोग क्या वजह से जो इधर बैठा है, उधर बैठा है, इधर बैठा है, सब ये लोग क्या वजह से जो मैं आज सक्सेसफुल हुआ हूँ इन लोग की वजह से हूँ. और मेरे को बहुत हैप्पी फील होता है ये बोल के कि
यही लोग मेरा गुरु है, यही लोग मेरे को सब कुछ सिखाया है। थैंक यू। एक मिनट, अच्छा एक और, तो गोविंद राज इधर ना, गोविंद राज है इधर। तो 292 में मेरे को सीओ साहब भेजा था, जब हम लोग ले में था तो मैं 30 में था, तो सीओ साहब मेरे को 292 भेजा था ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर जाने के लिए। तो मैं नॉर्थ ग्लेशियर गया था, मेरे साथ में पूरा शुरू से लेके लास्ट तक गोविंदराज मेरे साथ में था, पूरा राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो मेरे को बहुत याद करता हूँ, मैं डायरी में उसका नाम लिखा है, मैं जो उस दिन जो काम किया था मैं नवंबर 1991 में, पूरा उसका नाम एक आइटम उसमें। हेलो, मैं आपको अभी सीओ साहब से बात कराऊंगा, सीओ साहब आपसे बात करना। और सीओ साहब के बाद में जनरल कांडल साहब भी आपसे बात करना चाहते हैं। या सीओ साहब कर्नल अनिरुद्ध मोरेनी लाइन पर हैं। पदिनाले के बहादुर वेटरन, पदिनाले पोमुन्नाले, once more पदिनाले के बहादुर और प्यारे वेटरन्स, पदिनाले पोमुन्नाले, आपको और फैमिलीज को हमारे तरफ यहाँ से पटना से बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सबको पता है कि अभी हम फील्ड हैं और फील्ड यहाँ पे पूरा बिखरा हुआ है। हम तीनों हमारा जो फील्ड कंपनीज है, ये तीनों फील्ड कंपनीज फॉरवर्ड एरिया में एलसी पे डिप्लॉयड है, और हमारे जो सारे तंबी है वो बहुत डिफिकल्ट एरियाज में अभी या तो डोजर पे है या तो ऑफवर्क्स में काम कर रहा है। सो आप लोग जब ऐसा इकट्ठा होता है तब ये अभी आप अजय रेड्डी साहब हमको फोटो भेजेगा, ये फोटो हम सबको डिस्ट्रीब्यूट करके जब इन सारे तंबी का मोरल हाई हो जाएगा, और इनको एक कॉन्फिडेंस जो है, जो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है, वो और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हम इंडियन आर्मी और कोर ऑफ इंजीनियर्स में काम कर रहे हैं। सो पूरा रेजिमेंट के तरफ से मैं आप सबको, आपको और आपके फैमिली, मनोहरन साहब के लीडरशिप में आप लोग सारा का सारा इकट्ठा होता है, और कर्नल गोपीनाथ, कर्नल श्रीधरन, कर्नल अजय रेड्डी साहब और कर्नल कैलाश सहगल और सारे ऑफिसर्स जो हर साल इसको अटेंड करते हैं, पूरे दिल से हम आप सबको धन्यवाद बोलते हैं, क्योंकि आप लोग जब एफर्ट करके इकट्ठा होते हैं और पदिनाले का जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसके वजह से हमारा मोरल अप हो जाता है। और मेरे को अभी भी याद है लास्ट ईयर अजय रेड्डी साहब ने जो लेक्चर लिया था, वो इस रेजिंग डे के बाद मैंने फिर से वो लेक्चर सबको दिखाया था। उस लेक्चर में अजय रेड्डी साहब ने ये बोला था कि पीछे बैठे हुआ जो रिटायर्ड थका हुआ जो जवान है या वेटरन्स है, उन्होंने जो आज हमको ट्रेनिंग देके यहाँ तक लेके आया है, और उनका जो डेडिकेशन की वजह से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। सो अजय रेड्डी साहब ने इन सबको बोला था कि गुड जॉब डन। सो फिर से मैं अपने रेजिमेंट की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं, और बहुत हमारे लिए प्राइड का बात है कि आप लोग सारा इकट्ठा होता है हर साल और न्यू ईयर सेलिब्रेट करता है। लास्ट ईयर जब हम सेलिब्रेट किया था, आप लोग सेलिब्रेट किया था, तब आई वाज फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ ऑल ऑफ यू, एंड ऑल्सो सूबेदार मेजर अहमद जान साहब, हम दोनों वहाँ पे आया था और बहुत अच्छा लगा था मेरे को और हम सबको, क्योंकि हम लोग और हम सब ने हमारा फुटबॉल का जो विन था, वो हमने बीआरसीसी का जो विन है वो सेलिब्रेट किया था। इस साल भी शायद बीआरसीसी का हॉकी का चांस है, तो अभी यहाँ पे बर्फ गिरने वाला है, तो बर्फ पे हम लोग हॉकी स्टार्ट करने वाला है आपका ब्लेसिंग से। सो वंस मोर थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी एट पट्टन। परिनाले पो मुन्नाले। अभी मैं एसएम साहब को देता हूँ।
रेजिमेंट के एसएम साहब भी बात करेगा, अहमद जान साहब। जैन साहब, सभी साहब लोग को जैन साहब पदराले को मुनाले तमिल में बात करें साहब। अभी इप्पो मैं तमिल में बोलने वाला हूँ साहब, तमिल में बोलूंगा। இப்போ ரெஜிமெண்ட்ல ரொம்ப சூப்பரா ஏரியால தெரிவிச்சுக்கிறேன். எனக்கு இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ல இவ்வளோ இந்த ரேங்க் வரையும் வந்திருக்கிற இந்த ரேங்க் வரையும் நான் வந்தாச்சுனாக்கா அது காரணம் வந்துட்டு 292 பில் கம்பெனி தான். அந்த கம்பெனி எனக்கு ரொம்ப கைடன்ஸ் கொடுத்தாச்சு, கோர்ஸ் பண்றதுக்குலாம் சான்சஸ் கொடுத்தாச்சு. ஈவன் அஜய் ரெட்டி சாப் கம்பெனி கமாண்டர் இருக்கும்போது ஒரு கம்யூனிகேஷன் கார்டு கூட எனக்கு வாங்கி கொடுத்தாரு. அதனால நான் வந்து இன்னைக்கு ரெஜிமெண்ட்ல வந்து சுத்தார் மேஜர் ஆகிட்டு சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கேன் சார். பாக்கி சார் நம்ம ரெஜிமெண்ட் இங்கே ரொம்ப நல்லா பண்ணுது. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இது வரையும் பண்ணாத ஒரு காரியத்தை, அந்த காரியம் என்னன்னாக்கா இனோவேஷன்ஸ் டெல்லி ஹெட் குவார்டர் வரையும் 2 வாட்டி போயிட்டு வந்தேன் சார். நமக்கு சீஃப் ஆஃப் த ஆர்மி ஸ்டாஃப் பார்த்துக்கிற அப்ரிசியேஷன் கொடுத்துருக்காரு. நமக்கு நாயப் சுதார் ஈஸ்வர் ராவ் அண்ட் நாயப் சுதார் யோகானந்தன் சாப் இருக்காரு, 91 கம்பெனி எக்ஸ், இப்போ ஆர்ஹெச்குள்ள இருக்காங்க. அது இல்லாமல் ட்ரைனிங் சர்டிஃபிகேட் நிறைய வந்துட்டு அது மேலே வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுது சார். நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் ப்ராபபிளி அடுத்த வருஷம் 100% வந்துட்டு ரெஜிமெண்ட் சைட்டேஷன் வாங்கும். ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் இயர் பிஆர்சிசி வந்து ஹாக்கியுடைய லெட்டர் கூட வெரி சூன்லி வந்துட்டு டிஸ்பேச் ஆகிடும். ஸோ அதில் கூட நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வருவோம். அந்த சமயத்தில் எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம ரெஜிமெண்ட்டுக்காக வந்து கோஆபரேஷன் பண்ணலாம். ப்ளஸ் கைடன்ஸ், உங்களுடைய கைடன்ஸ் 100% ரிக்வயர்ட் சார். ஏன்னா உங்கள் கைடன்ஸ் இல்லைனாக்கா நம்மளாம் இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வரையும் வர முடியாது. நான் லாஸ்ட் வீக் கூட வந்துட்டு நிறைய பேருடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பேர் நான் சொன்னேன். 92 கம்பெனியில் வந்துட்டு எனக்கு நிறைய கைடன்ஸ் கொடுத்தாச்சு. ஃபர்ஸ்ட்லி வந்துட்டு சுத்தார் மேஜர் ஆர்டினரி கேப்டன் கிருஷ்ணமூர்த்தி சாப், அவர் தான் என்னுடைய குரு. அவர் தான் எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீ எப்படி வந்து உனக்கு இருக்கிற நாலேஜுக்கு எப்படி போன முன்னாடின்னு சொல்லி கொடுத்தாரு. அந்த சமயத்தில் வந்து மனோகர் சாப் எஸ்எம் சாப் இருந்தார் கமிஷனர். அப்புறம் அவருடைய கைடன்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸில் வந்துட்டு எப்படி எப்படியா பண்ணணுன்ட்டு. அப்புறமா விஸ்வலிங்க சார், நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம சுந்தரசேகர் சாப், இவங்க எல்லாருமே நிறைய கைடன்ஸ், சௌரி பாபு சாப், முத்துராஜ் சாப், அது இல்லாமல் என்னுடைய நம்பர் கூட நிறைய பேர் இருக்காங்க. இப்போ பென்ஷன் ஆகிட்டு இந்த பார்ட்டி கூட எனக்கு அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணி என்ன நிறைய வாழ்த்துவாங்க. இதுக்கெல்லாம் நீங்கெல்லாம் வந்து என்னை சப்போர்ட் பண்ணதுக்காக தான் நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து சுத்தார் மேஜர் ஆகிட்டு ரெஜிமெண்ட்ல சர்வீஸ் பண்றேன் சார். அதனால இந்த ஒரு மோக்கா கர்னல் அஜய் ரெட்டி சாப், சிஓ சாப், நம்முடைய சிஓ சாப் எனக்கு மோக்கா கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். சார் 14 பேர் முன்னாலே சார். थैंक यू साहब। अभी मैं जनरल कांडल से करूंगा सर, यू कैन स्पीक सर। Thank you, Ajay. Honorary Colonel of President and the President for President Rights. सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अजय रेड्डी साहब का कि उसने मुझे मौका दिया आप सबसे बातचीत करने का। मनोरंजन साहब को कौन नहीं जानता, वो हमारे साथियों में से सबसे कईयों से बहुत ज्यादा प्यारे पर्सनलाइट है। इन्होंने जो पदनाले के लिए किया इनके एरिया के टाइम पर, और उन्होंने जो पदनाले के लिए किया सारे इंडिया में हम सब जानते हैं। ये मीटिंग उधर तकरीबन हर साल होती है। मैंने 1-2 बार प्रोग्राम बनाया भी, मुझे पता चला था काफी लोग जा रहे हैं, उसमें
ये भी हैं हमारे बहुत प्यारे कल जब से कई से करते रुक जाता हूँ, वक्त की लफ्ज भूल जाता हूँ, तो ये दुआ आप इतनी करते हैं मेरे लिए, ये भी कहीं बोल दीजिएगा कि बाबा इनका जो बोलचाल का तरीका था वो वैसा ही रहे, क्योंकि हम सब उस तरीके को बहुत प्यार करते हैं। मैं बड़ा सेल्फिश हूँ कि आपसे बोला मेरे लिए क्या दुआ करें, वो यही है कि मुझे 14 के साथ जो भगवान ने जोड़ मेल ताल बोल ताल बेल ताल जोड़ ताल जो भी दिया है मेरे आखिरी सांस तक वैसे ही रहे, क्योंकि मुझे अगर किसी से बेहद से बेहद प्यार है तो वो 25 नाले से है और 25 नलायतों से है। आज मुझे आपको बताते हुए खुशी होगी कि आज आप सब मेरी आवाज सुन रहे हैं, किसकी वजह से? बहुत ही पहले अजय राठी साहब की वजह से। एक बार इन्होंने जब ये रेजिमेंट कमान कर रहे थे तो मैंने आना था, मैं आ नहीं सका, मैं किसी वजह से एयरपोर्ट ऑफ बेंगलोर है, बेंगलोर ही था, मैं भूल जा रहा, माफ करना, ये कमान में थे तो इन्होंने सडनली मुझे, मैं वेट कर रहा था फ्लाइट की, टेलीफोन आया कि जी हम सब वेट कर रहे हैं, आप अभी माइक पर हैं। उस वक्त तो टाइम नहीं था, हमें सबको प्यार दिया और 3 बार पजीनाले पोगनाले बोला, जितने जोर से बोल सकता था मैंने बोला, और जवानों ने अफसरान ने सब ने उसी का जवाब भी उतने ही जोश से दिया जितने जोश से मैंने उनको पजीनाले बोला था। और पजीना जब वो फिर जाने का मौका आ गया तो हम उसके सभी लोग कहने लगे कि जी ऐसा हमने कभी नहीं देखा, ये पहली बार है कि रेजिमेंट का दरबार हो रहा है, बीच में बोलने वाले कई वहां पर यूनिफॉर्म के लोग भी बैठे थे, तो कहने लगे पहली बार देखा कि एक साहब अपनी रेजिमेंट के जवानों से और अपनी पर्सनलाइज को आफ्टर सिक्योरिटी चेक पर बातचीत कर रहे हैं। उनको शायद उसके बाद तो सबको भरोसा हो गया और इस दफा यही बात हुई है आज। इन्होंने अजय रेड्डी साहब ने हमको आपसे मिला दिया। मैं दूसरी बार सबसे बात दूसरा है वो है कि मेरे प्यारे मनोरंजन साहब ये प्रोग्राम हर साल वही ऑर्गेनाइज करते हैं, मेरा जहां तक ख्याल है, और उनके प्रोग्राम कोई भी अकेला नहीं करता या कर सकता है, उसके लिए साथियों की प्यारों की हम सफर करने वालों की जरूरत होती है। और ये मैंने एक प्रोग्राम में आना था, मैं लास्ट टाइम नहीं आ सका, लेकिन मुझे तो सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती थी जो जसवाल वगैरह जसवाल साहब है, ये मेरे साथ सेकंड लेफ्टिनेंट थे, तो बहुत अच्छे ऑफिस, बहुत अच्छी रेजिमेंट कमांड करी। वो तो तकरीबन सभी
ऑफिसर हमारे कम से कम जो कमांडर हुए हैं पद्दीनाले रेजिमेंट के, उन्होंने दिल जान से पद्दीनाले की सेवा करी है और पद्दीनाले भी उनका सेवा को कभी भूल नहीं सकते। तो दूसरा, मैं शुक्रगुजार हूँ मनोरंजन साहब का इस प्रोग्राम को जारी रखने के लिए, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम ही तो हैं जो सबको दिखाते हैं हिंदुस्तान में के बॉन्डिंग क्या हो रही है, बॉन्डिंग, मेल मिलाप, जोड़, एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार कौन है? पद्दीनाले पोमनाले रेजिमेंट वो है। समझ नहीं आती बाला साहब से लेकर हमारे कितने ग्रुप सूबेदार मेजर हुए हैं और जोश से एक्सीलेंट कमांड इन्होंने अपना दिखाया है सेंटर में कि पद्दीनाले क्या है, सबको मालूम पड़ता। देखते हैं कहीं भी बच्चे भी बोलते हैं पद्दीनाले पोमनाले, क्योंकि ये आपको जो स्लोगन मिला था ये कहने को तो सब कहते हैं, जनरल कॉन्डर ने दिया, जो कुछ होता है वो भगवान की मर्जी से होता है। उसकी मर्जी थी। हमारी रेजिमेंट को ऑलरेडी उस वक्त 3 साल हो चुके थे रेस हुए, लेकिन उस दिन तक भगवान ने चाहा कि ये चलने दो और 60 जून 69 में ये मुझे भगवान ने प्रॉम्प्ट किया था, चाहे एक ने किया हो, 2 ने किया होगा, लेकिन उसके उनका प्रॉमिस था प्रॉम्प्ट मुझे था कि मैं पहले दरबार में ये चीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ये भी बताऊंगा क्या हमारा रेजिमेंटल स्लोगन होगा और ये क्यों होगा, ये सब मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया था। तो आज सबसे पहले अजय रेड्डी साहब का जो हमारे रेजिमेंट के ऑनरेरी कर्नल कमांडेंट हैं उनका और मनोरंजन साहब का और बाकी तमाम ऑफिसरान जो आपके पास इस वक्त आए हैं और जितने SM साहब, सुबेदार साहब और सुबेदार ऑनरेरी कैप्टन, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और जितने वहाँ पर हमारे पुराने जवान रिटायर्ड सारे हमारे साथी, उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा हर साल की तरह आज भी इस दिन को जरूर मिलते हैं, जरूर आपस में प्यार का इजहार बदल होता है, एक दूसरे को प्यार से जफियाँ पड़ती हैं तो हग जिसे बोलते हैं ना, हग। और कई तो अभी इतने बड़े बड़े हो गए साइज में भी कि वो हग को भी हम बेयर हग कहते हैं, रीछ की तरह मिलते हैं आपस में, बहुत अच्छा लगता है। मैं देखो बड़ा दिल है रेजिमेंट में जाने का, बड़ा दिल है बहुत सी चीजें करने का, लेकिन अभी तक और ना ही हटेगा। पोमनाले पद्दीनाले पद्दीनाले पोमनाले। Thank you, sir.
थैंक यू सर। अजय रेड्डी का साहब हमारा जो रेजिमेंट कमांडर और रेजिमेंट एसएम साहब से पट्टन से डायरेक्ट देखा है, हमारा जनरल साहब से कर्नल साहब से डायरेक्ट रिले को पूरा में हमारा लेफ्टिनेंट कर्नल देवदास साहब प्लीज। அனைவருக்கும் என்னுடைய புத்தாண்டு பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள், வணக்கம். என்னை பற்றி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கே தேவையில்லை. 90% எல்லாருக்குமே என்னை பற்றி தெரியும். ஆனால் நான் ரொம்ப வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் நாளத்துக்கு அப்புறம் என்ன தான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிறேன். ஏன்னா எல்லாரையும் ஒன்று பார்க்குறதுக்கு த கிரேஸ் ஆஃப் காட் ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிது. அதற்காக இதற்கு காரணமான ஒவ்வொருவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள், நன்றிகள். என்னை பற்றி ஸ்பெஷலாக சொல்லணுன்னா, நான் இந்த இடத்துல நிற்கிறதுக்கு காரணமே நீங்கள் எல்லாரும் தான். நான் 1980 நவம்பர் மாதம் 292 ஃபீல்டு கம்பெனியில் ஆஸ் ஏ சாப்பராக போஸ்டிங் ஆன 1996 செப்டம்பர் மாதம் கமிஷன் ஆகி அங்கேருந்து கிளம்பினேன். அதுவரை என்னுடைய மொத்த சர்வீஸும் 292 ஃபீல்டு கம்பெனி தான். எக்ஸப்ட் ஒரு 3.5 இயர்ஸ் சிஏடபிள்யூவில் இன்ஸ்ட்ரக்டராக இருந்தேன், அவ்வளவுதான். பாக்கி ஃபுல்லாக என்னுடைய சர்வீஸ் ஒன்லி 292 பியூர். அப்போ நான் இந்த நிலைக்கு வந்ததுக்கு காரணமே இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் தான். ஏனென்றால் ஆர்சி கமிஷன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஆர்சி கமிஷன் ஆஃபீஸர் வந்துட்டு யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதி வர்றது கிடையாது. அவங்க எந்த எஸ்எஸ்பி அதாவது ஏசிசி எக்ஸாம் எழுதுறதில்ல. ஆர்சிஓ ஆகிறதுக்கு ஒரே ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் சிஓ கம்பெனி கமாண்டர்ஸ். அந்த பாக்கியம் எனக்கு மட்டும் கிடைச்சிருக்குது. ஏன்னா ஐ ஆம் த ஒன்லி ஆர்சிஓ ஆஃப் ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் ஆர்சிஓ ஆஃபீஸஸ் ஆஃப் 292 ஃபீல்டு கம்பெனி அண்ட் 14 இன்ஜினியர். பாக்கி நிறைய எஸ்எல் ஆஃபீஸர் இருக்கிறாவ, ஏசிசியில் ஆஃபீஸர் எல்லாம் 14 இன்ஜினியர் உருவாக்கி இருக்குது. ஆனால் என்ன மொத்தமாக உருவாக்குனதே இந்த 14 இன்ஜினியர் தான். ஏனென்றால் என்னுடைய சீனியர்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாரும், எக்ஸ்பெஷலி வெங்கட்ராமன் சார் போஸ்டிங் வந்ததும் ஃபஸ்ட்டில் அவர் என்னை என்கரேஜ் பண்ணார், நீ கண்டிப்பாக உன்னை ஆஃபீஸர் ஆக்குவேன்னு. அதே போல் நான் ஆஃபீஸராக இருக்கும்போது நெக்ரோட்டாவில் இருக்கும்போது சாரை நான் வந்துட்டு அங்கே மீட் பண்ணேன். அவர் எங்கள் 5 இன்ஜினியர் ரெஜிமெண்ட்டில் நான் இப்போது குவார்டர் மாஸ்டர் அண்ட் அட்ஜுட்டன் டியூட்டி பார்க்கும்போது சார் அங்கே வந்திருந்தார் அந்த ஒரு பில்டிங் அந்த இதுக்காக. அதிலிருந்து அவருக்கு கனவை நான் நிறைவேறிட்டேன். அவர் சொன்னபடி என்ன ஒரு ஆஃபீஸர் ஆகிட்டேன். ஆனால் எனக்கு என்னன்னாக்க, இன்னும் நான் ஆஃபீஸர் ஆனது என்னுடைய எஃபிஷியன்சின்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன். ஏன்னா என்னை விட எல்லாருமே எஃபிஷியன்சி உள்ளவங்க தான். ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபீல்டில் நல்ல ஒரு இது இருக்குது. பட் ஃபார்ச்சுனேட், அதாவது த கிரேஸ் ஆஃப் காட், எனக்கு மட்டும் ஒரு அந்த சான்ஸு கிடச்சிது. அதற்காக ஃபஸ்ட்டு ஆல்மைட்டி காட், தென் ஆல் சீனியர்ஸ் அண்ட் ஜூனியர்ஸ் உங்கள் எல்லாரையும் என்னுடைய சார்பாக என்னுடைய குடும்பத்தின் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். இப்படி ஒரு சான்ஸை எனக்கு தந்த இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. எல்லோரும் இந்த வருடம் ஃபுல்லாக எல்லாருக்குமே ஒரு வெற்றியின் ஆண்டாக, ஒரு ப்ராஸ்பரஸ், ஒரு நல்ல ஆண்டாக உங்களுக்கு இருக்கணும். அதான் என்னுடைய மனமார வாழ்த்துக்கள். இன்னும் ஒவ்வொருவரும் வாழ்க்கையில் இன்னும் முன்னேறணும் வாழ்த்தி என்னுடைய சிறிய உரையை முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். वो कृष्णमूर्ति साहब भी ब्राउपलटन का है और साहब भी ब्राउपलटन का है. दोनों का वो सर्वे फील्ड ट्रेड भी है. हाँ, दोनों एक साथ काम भी किया है. CAW में भी काम किया है और कंपनी में भी काम किया है. थैंक यू साहब, थैंक यू. अभी कमीशन बन के मेजर रैंक में अभी सर्विस कर रहा है. अभी अप्पाराव को स्टेज पर प्लीज. अप्पाराव. जो लेडीज जो बैठा है वो सभी को मैं स्टेज पर नहीं बुला सकता है. वो सभी जो लेडीज वेटरन्स का तरफ से हमारा
प्रोग्राम का जो लास्ट इवेंट है, वोट ऑफ थैंक्स। afternoon, sir. All of you, good afternoon. पदिनाले पो मुन्नाले, सब कुछ है, सब कुछ है। कहने के लिए समय हो रहा है, वही सोच रहा है। ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए थोड़ी सी बात है। अभी मुझे बहुत खुश है और साथ साथ सबका साथ तो बहुत खुश है, लेकिन इतना 292 फील्ड कंपनी का आयोजन न्यू ईयर साथ साथ पोंगल सेलिब्रेशन के लिए आयोजन किया है। अभी मेरा फैमिली की तरफ से सबको धन्यवाद देता हूँ। कई दूर से इधर 2 दिन पहले 3 दिन पहले इधर आया है, उसके लिए मैं मेरा फैमिली की तरफ से वेल्लूर वेटरन्स में बहुत आभारी हूँ। और खुशी का बात है, अभी ऑर्गेनाइजेशन टीम नेक्स्ट इजी जैसा न्यू ईयर में जनवरी में अपना 292 फील्ड कंपनी का आयोजन नेक्स्ट केरला में या आंध्रा में या तमिलनाडु में या कर्नाटका में गोपाल तंबरे साहब, शिवरामन साहब, सेतुपति साहब, BN राव साहब आयोजन करेंगे। तभी तमिलनाडु वेटरन्स 292 फील्ड कंपनी जवानों को भी उधर जाके मिलेगा। इसलिए वेटरन्स का तरफ से समय हो रहा है, मेरा भाषण को जल्दी समाप्त करता हूँ। मैं घर में इतना तरीका नहीं देख सकता है, मुझे पुराना याद आ रहा है। अभी आने के बाद हर एक आदमी के 10 साल उम्र कम हो गया। अभी जिसका 50 साल उम्र है हो गया, जिसका 50 हो गया। अभी घर में कितना भी पैसा रखो, कितना भी टीवी में देखो, इंटरनेट नहीं होगा। फील्ड कंपनी साल 2020 प्लान करेंगे। इस मंत्री आने के लिए मेरा रिक्वेस्ट है। इधर देशवास जवान मेरा साथी पैरस को मेरा नमस्कार पदिनाले थैंक यू साहब, थैंक यू साहब। लास्ट में अपना जो हॉल वगैरह दे के अपना अन्नामलैयार रेसिडेंसी का अपना जो ओनर आया है, जो एक्सर्विस मैन बताने से वो सामने क्या करेगा, जो भी है ठीक है ले लो, जो भी है ठीक है कम पैसे में दे देंगे, खाना ठीक है उसके लिए पैसा नहीं चाहिए। पैसा पूरा अपना एक्सर्विस मैन के लिए जो भी वेलफेयर देखना है वो देख देख के करने वाला, अपना सेवा के लिए जो ऑनर करने के लिए अपना कैप्टन मनोहर साहब ने
Good afternoon. I am unhappy because I am not an army man. If I am an army man, I am definitely very happy as a Indian. Friends, this is great privilege for me and also you to be here, all the old army men along with me. And also, you are all great sons, more than our father, our grandfather and all those things. Because you are all our soldiers of our country. I am really very happy along with you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. இங்க தயவுசெய்து இந்த 26ஆம் தேதி குடியரசு தினத்துக்கு ஏதோ ஒரு பள்ளியில போயிட்டு நீ போஸ்டிங் பண்ணணும் என்று சொல்கிறேன். லோக்கல்ல இருக்கிற ட்ரை டு கோஸ்ட். தேங்க்யூ. थैंक यू सर. थैंक यू. अच्छा, एक नया चीज आपको इंट्रोड्यूस करेंगे क्योंकि अभी अपना ग्रुप सॉन्ग है और रिजिमेंट का सॉन्ग है, पदिनाने का सॉन्ग है, लेकिन अभी तक आप वेटरन्स का सॉन्ग सुने? पहला बार अभी वेटरन्स का सॉन्ग है. ये वेटरन्स का सॉन्ग है रिटन बाय कैप्टन मनोहरन साहब, our composing music and singing by Havildar Vijayan 291 Field Company. Thank you. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे